Hello, dear students. Welcome to the today's class. As you know, we are carrying on with this chapter, chapter 4, working of institutions. In the last video, in the last class, what we have been discussing, we were talking about political institutions. In this political institution, the major institutions we have talked about, we have the first institution that we had discussed about was the parliament. A lot of discussions we had on parliament, and we came to know about the working of parliament, about the functions of parliament, and the importance of parliament. The identity of any country, any existing country in the world, the democratic country that is there, its identity is the parliament. डेमोक्रेसी की बात अगर कर रहे हैं, then that country should have and should possess one important the country should have a very important thing that is needed, and that is parliament. So here we talked about parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, its functions, importance of Lok Sabha, importance of Rajya Sabha. All these we had already had a lot of discussion. Now, last class, what we have been discussing about this major institution, my dear children. So it was Prime Minister and the Council of Ministers, or we can say the Cabinet Ministers, and their working and their functions in India. Got it? The way Prime Minister works, the way he takes the decisions, the way he interacts with the people, that is where the future of the country lies. हमारे को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, what actually is going to happen, how the things will run smoothly, in case people are having any problems, where will they go. ठीक है, तो ये हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा. ही इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. ही इज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. When we go for voting, हम जब voting करते हैं, at that time we are not very sure कि who would be the prime minister, क्योंकि हम we are not voting for a person who is a candidate of prime minister. We are voting for a person who is member of a party, and then the party wins, and then the party decides who would be carrying on the functions of the prime minister, or who would be declared as the prime minister in future. So that is what is called as indirect election, indirect selection. It's not a direct selection. Got it, children? So this we had done. President is the person who appoints the prime minister. Once the prime minister is appointed, then he decides that who all would be heading the cabinet, and who all would be the ministers in the cabinet. Got it? एक मैंने आपको कार्टून भी दिखाया था. Yes, my dear children, I had shown you that cartoon, and that said, and that very well included in that, we could very well understand after seeing that cartoon that how the people are there who are aspirants of the post of cabinet ministers. नेहरू जी का जो फोटो बना हुआ था 62 में, तो मतलब these kind of cartoons which are there, it very clearly signifies that how the people who have won the elections, they always want to hold the position of the prime minister, of some or the other ministers. Then we have talked about the council of ministers. Prime minister, if is elected, prime minister is not going to work alone. उनको एक पूरा ग्रुप साथ देता है. One whole group is assisting the prime minister, and this is called as the council of ministers, where we have 60 to 80 council ministers, जिसमें कि some of them are cabinet ministers. ठीक है,
कुछ जो लोग होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हु आर होल्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जिनका सबसे ज्यादा पावर होता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, दीज आर द मोस्ट पावरफुल पोस्ट्स, दीज आर द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स इन एनी कंट्री। तो इनको चुनने का काम फिर प्राइम मिनिस्टर का होता है। ऑफ कोर्स द पार्टी मेंबर्स आर ऑलवेज देयर, द पार्टी गिव्स इट्स कंसेंट कि कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, इसके ऊपर सारे लोगों का कंसेंसस होता है। मतलब पीपल गिव देयर आइडियाज, पीपल गिव देयर वोट्स नहीं, मतलब दे गिव देयर कंसेंट कि किसको क्या पोजीशन देनी है। गॉट इट? दैट इज देयर। इसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन दिस वी हैव official name and the top level people who are there in the party, they are holding this position. Here we have talked about this. ये मैंने आपको एक फिगर बना के बताया था in the last class where I had said that PM, that is the prime minister, is the nucleus. बिल्कुल बीच में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द इमीडिएट, आई मीन सपोज देयर इज सम इमरजेंसी इन द कंट्री, जैसे अभी कोरोना आया, कोविड। So for COVID, any discussions are there? The first discussion that the Prime Minister will be having, he would be having his discussion with the cabinet ministers. उसके बाद नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना आइडिया, अपने पॉइंट्स बाद में देंगे। पहला जो पॉइंट होता है दैट इज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, दे आर टेकिंग डिसीजंस on behalf of the council of ministers, all these cabinet ministers who are there. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमेशा नहीं बुलाया जाता है। सारे मिनिस्टर्स आके बैठ के मीटिंग करने लगेंगे तो काम कौन करेगा? Got it? So all these council of ministers, the ministers who are there round the clock, day in and day out, they keep working, they keep serving the nation, and they keep the prime minister informed about it. प्राइम मिनिस्टर को एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, अगर उनको ही नहीं पता है कि उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, देन दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट। गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये एक पॉइंट था दैट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड, दैट वी नीडेड टू नो। नाउ व्हाट हैपेंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, द मिनिस्टर्स टोटल जो हमने बताया था 60 to 80 ministers में, there are 20 to 25 ministers who are cabinet ministers. I told you that immediately those who are assisting the prime minister को immediately जो ideas देते हैं, they are the cabinet ministers. And इसमें minister of state is there with independent charge. Some of the ministers who are there, they are the ministers of state with independent charge. Small departments are there, small ministries are there. छोटे मोटे मिनिस्ट्रीज जो होते हैं वो इनको दिए जाते हैं। दे कम टू अटेंड द मीटिंग्स। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, दे आर ऑलवेज देयर टू पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग्स, बट समटाइम्स इट हैपेंस एवरी टाइम दे आर नॉट कॉल्ड फॉर ऑल द मीटिंग्स। सारी मीटिंग्स में हमेशा इनको नहीं बुलाया जाता है। गॉट इट चिल्ड्रन? तो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मिनिस्टर्स एंड स्मॉल मिनिस्ट्रीज। अगर इनको दिया गया है, दैट डज नॉट मीन कि इनका पावर कहीं पे भी कम हो जाता है। दैट डज नॉट मीन दैट द पावर ऑफ दीज मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज इज लेस। दे आर इक्वली पावरफुल। देन ये सारे लोग हैं, देयर इज अ कंप्लीट चेन। ये जो चेन है इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है? इसको मैं मिटा नहीं रही हूं, आई एम नॉट इरेजिंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट फर्दर वी नीड टू टॉक अबाउट। इसी में और 2-3 चीजें हम डिस्कस करेंगे डियर चिल्ड्रन। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? आई जस्ट लेट यू नो कि काउंसिल पीएम है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। Who are the people who are assisting the council of ministers? ठीक है, ये मिनिस्टर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया का काम धाम अगर देख रहे हैं तो there is another level which is assisting them, and that is the minister of state.
ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट द चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही है, इट इज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट अफेयर्स, मतलब हर एक राज्य में क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से सारी चीजों को देखा जा रहा है, हु आर द पीपल हु आर मैनेजिंग द स्टेट अफेयर्स, दे आर कॉल्ड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी क्या होता है कि मिनिस्टर्स हमेशा एक बार मिल नहीं पाते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करना इनके लिए दिक्कत होता है, तो all the decisions, major decisions related to the country or related to some big issue is taken in the cabinet meetings. Got it? So please understand that all major decisions are taken in cabinet meetings. Got it? कैबिनेट मीटिंग्स, इनकी जो बैठक होती है ना, इसमें कहते हैं ना कि जैसे भाजपा की देयर वाज मीटिंग, भाजपा मेट एनुअली एंड दे वर डिसाइडिंग ऑन सर्टेन इश्यूज, दे हैड सर्टेन पॉइंट्स दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। तो ये जो मीटिंग्स है, दीज मीटिंग्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। यही मीटिंग्स में काफी सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बहुत सारी कंट्रीज, प्लीज दिस इज जीके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट में बैठ के जो सारी चीजें डिसाइड करते हैं, इट इज ऑफ ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, is also known as cabinet form of government, is also known as कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट लेवल पे ही सारे डिसीजंस हो रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। पीएम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैबिनेट। तो कंट्री से रिलेटेड वॉट एवर मैटर्स आर टू बी डिसाइडेड, वॉट एवर थिंग्स विल बी डिसाइडेड, these all things are decided at this level only. Got it? So it is also known as cabinet form of government. Okay? तो कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। ये जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, दे आर ऑलवेज एज अ टीम। कभी भी इनका आपस में झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। अगर होता भी है, what happens, there are 25 people are there with 25 views, तो बातचीत करके वहीं पे हल निकाल लेते हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन देयर एंड देयर, rather than discussing it somewhere outside, और उस चीज के बारे में, उस चीज का कहीं इशू ना बन जाए, इस चीज का ये बहुत ख्याल रखते हैं। they all properly take care of all these things, that the things are not discussed somewhere outside। आपस में पूरा टीम की तरह ये काम करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट ओपिनियंस, इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एवरीथिंग, ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन बिहाफ। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज देयर हु कीप्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स बाइंड टुगेदर। अगर साथ में नहीं रखेंगे, आपस में वो कहेंगे ना, आपस में तो पार्टी के मेंबर्स झगड़ रहे हैं, कंट्री क्या संभालेंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड दैट दे आर टोटली यूनाइटेड पीपल। ये पूरी तरह से साथ में हैं, कोई भी इनको तोड़ फोड़ नहीं सकता है, कोई भी इनकी चीजों को अफेक्ट नहीं कर सकता है। Nobody can influence their decisions. Got it? So that is what they were, here it is said. No minister can openly criticize any decision of the government. अगर कोई भी मिनिस्टर ऐसा करता है, तो अगर किसी और मिनिस्ट्री का या किसी और डिपार्टमेंट की भी बात है, तो भी ये आपस में इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो नो मिनिस्टर कैन openly criticize
the government. देखो प्लीज अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना कि ओपनली की क्या बात है। तो क्या मतलब ओपनली नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट बनाया हुआ है, द पीपल हैड टू बी टुगेदर ऑल थ्रू। हर एक पॉलिसी डिसीजंस में वॉट एवर इज डिसीजंस आर टेकन इन द फेवर ऑफ द कंट्री, एवरीबडी हैज टू यूनानिमसली एक्सेप्ट इट। सब लोगों को मिलके इसको एक्सेप्ट करना है। Got it? That is there. And the secretaries are there who are providing necessary background information. Who are these secretaries? Yes, the permanent executives. Okay. The secretaries provide important informations got it? They are providing important informations to the ministers. They always keep the ministers informed about all the happenings. जितनी भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी हैपनिंग्स हैं, जो भी मैटर्स डिसाइड किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों में ये साथ रहते हैं। गॉट इट? सो cabinet is working as a team and it is assisted by the cabinet secretariat. Got it? Ministers have got all the secretaries, each ministry has secretaries who are civil servants. Okay, please understand that these secretaries are civil servants. Got it? हाँ, अगर सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे, इफ दे आर अनेबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट, इफ दे आर अनेबल टू शो द राइट पाथ टू द गवर्नमेंट, तो क्या होता है कि गलत डिसीजन लिया जा सकता है जिसकी वजह से देश का नुकसान होगा। That's why these secretaries who are there, these ministers who are there, they are always guided by these civil servants. IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, इतना टॉप मोस्ट पोजिशन है। एंड कैबिनेट पूरा टीम होता है, तो कैबिनेट इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। गॉट इट? कैबिनेट इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। गॉट इट? All these secretaries who are there, the secretariats which are functioning, these all are dependent on each other. Okay. And इसमें क्या होता है? Who are the members? Cabinet by cabinet secretariat. इसमें कौन होते हैं? Senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. Okay. तो इसमें what we need to understand, अब इसको हटा देते हैं। Yes. कि major policy decisions that are being taken, major things that are to be decided, the secretaries are there and the secretaries keep on coordinating with each other. इतनी सारी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, so many ministers are working, तो there needs to be lot of coordination. ठीक है? Finance department needs some information from the defense department needs some money from the finance department has to see that the welfare activities that are going on, जितना पैसा अलॉट हुआ है, सारे लोगों को पैसा मिला है कि नहीं मिला है। The other people who are in charge of the welfare schemes, hospitals are working, health ministers are there. तो health minister, finance ministries were totally helping the health ministers during the time of COVID. कंटिन्यूअसली जितना पैसा चाहिए था कि आप लीजिए, लेकिन जस्ट सी दैट द कंडीशन डज नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है? दैट काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। तो क्या होता है? देयर आर मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, बहुत हाई लेवल के, जो कहीं पे मतलब कि दोज हु हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 15 years 20 years. So many civil servants are
members of कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. ठीक है, कैबिनेट में सब हाई ऑफिशियल्स आर देयर, हाई लेवल मिनिस्टर्स आर देयर. तो इनको असिस्ट करने के लिए देयर आर सीनियर सिविल सर्वेंट्स. अब सपोज अ सिविल सर्वेंट इज देयर, एन आईएएस ऑफिसर इज देयर, हु वाज अपॉइंटेड जस्ट नाउ इन 2019. तो वो 2019 में अपॉइंट हुआ, उनको कितना एक्सपीरियंस होगा? So the people who are posted here as civil servants in the cabinet secretariat to help the cabinet ministers, 15 साल 20 साल जो civil servants रह चुके हैं, they are part of this members of cabinet secretariat. कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. आई मीन इमीडिएटली अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर्स आर नॉट देयर. क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग, सो मेनी पीपल आर असिस्टिंग हिम, ऑल दिस वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली. ये सारी चीजें हैं. तो प्राइम मिनिस्टर हु इज लुकिंग आफ्टर द होल कंट्री, पूरे कंट्री का लेखा जोखा जिन्होंने रखा हुआ है, तो उससे आप सोचो कि हाउ मच पावरफुल द प्राइम मिनिस्टर वुड बी. एंड उनके खाली प्राइम मिनिस्टर के पावर की यहाँ बात नहीं है. द पीपल हु आर असिस्टिंग हिम और द पीपल हु आर लाइक हेल्पिंग हैंड्स टू द प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल्सो नीड लॉट ऑफ पावर. They also need to be very powerful. Got it, children? So here we have one point, that powers of Prime Minister. Powers of Prime Minister. इसको भी हमको समझना पड़ेगा. Let's discuss it. फर्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सबसे जरूरी का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन. पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा नहीं मेंशन है. तो क्या होता है, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेसी में द प्राइम मिनिस्टर इज चोजन बाय द कॉमन पीपल and he is heading the government. So when he is heading the government, he needs immense power. काफी सारा पावर इनको मिलना चाहिए, काफी सारा पावर इनके पास होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स. गॉट इट? सो पीएम हैज वाइड रेंजिंग पावर. बहुत सारा पावर होता है इनके हाथ में, सारी चीजों को अथल पथल करके रख सकते हैं. दैट इज देयर. सबसे पहला जो इनका होता है ना, बिकॉज वी हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो एनी मीटिंग दैट हैपेंस, ही इज हेडिंग ऑल द कैबिनेट मीटिंग्स. ओके, तो ही चेयर्स ऑल कैबिनेट मीटिंग्स. जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ही इज ऑलवेज देयर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, एंड ही विल सी कि कोई भी गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए. एक गलत डिसीजन फ्रॉम द टॉप लेवल विल हैव एन इफेक्ट ऑल ओवर. सबके ऊपर उसका असर पड़ेगा. तो वो बहुत इस चीज के लिए श्योर रहते हैं एंड बहुत अलर्ट रहते हैं. ओके, then he is coordinating the work of different departments. So many departments are there. Now, just now I told you, health department, finance department, defense department. Okay, so he coordinates working of all departments. Got it? सारे डिपार्टमेंट्स का काम जो है ये अपने तरीके से देखते हैं, अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं. एंड ऑल द वर्क, आई टोल्ड यू ना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट. तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क को कोऑर्डिनेट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, बिकॉज हिज डिसीजंस आर फाइनल. हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग एंड कितनी बार क्या होता है कि बहस होने लगती है. 10 तरीके के लोग बैठे हैं, 10 people are there with 10 kinds of views.
So in these conditions, the decision of the Prime Minister is finalized. Okay, his decisions are final in case of disagreement. अगर 3-4 लोग बैठे हैं एंड वो किसी चीज पे फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, देन एट लास्ट हिज डिसीजंस आर फाइनल. एंड प्राइम मिनिस्टर कौन क्या काम करेगा, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर, ही इज द वन हु हैज सजेस्टेड द नेम ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. उन लोगों की ओथ टेकिंग करवाई है, द प्रेसिडेंट के साथ मिलके उनको अपॉइंट करवाया है. तो कौन क्या काम करेगा, दिस फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर. ही distributes and redistributes the work to the ministers. Got it? Okay, please understand that he distributes and redistributes the work. Got it? काम करते हैं, फिर से काम को बांटते हैं, तो वर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क. एंड इन केस ही विल फाइंड दैट सम मिनिस्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किसी मिनिस्टर ने ठीक से काम नहीं किया है या फिर मतलब कि काम जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है, अंडर वर्क है, तो ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स. किसी भी मिनिस्टर को कभी भी हटा सकते हैं. सो he has power to dismiss the ministers. कभी भी इन मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है. If the prime minister is not satisfied with their work, मिनिस्टर्स खाली पावर एंजॉय करने के लिए नहीं बने हैं, मिनिस्टर्स खाली एसी में बैठ के और मजाक करने के लिए नहीं बने हैं. मिनिस्टर्स हैं तो day in and day out they are required to work. Got it? And if the prime minister sees that some ministers are not performing their duty up to mark, anytime they could be dismissed. And if the prime minister quits, the entire entire ministry quits. अगर प्राइम मिनिस्टर हटेंगे, so if PM quits मतलब अगर हट गए या हटा दिए गए, हटा दिया नहीं जाता है प्राइम मिनिस्टर को वैसे, देन द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स. पूरे मिनिस्टर्स को हटना पड़ेगा. फिर प्राइम मिनिस्टर हट गए हैं तो सारे मिनिस्टर्स को हटना पड़ेगा. Yes, अभी तो दे आधे ही पावर हैं प्राइम मिनिस्टर के. अभी there are many other powers that we need to discuss. We'll continue in the next video, children. Till then, thank you so much and all the best to you. Students, we are talking about the Prime Minister and the cabinet ministers. Lot of discussions we had, जहाँ पे हमने ये समझा that Prime Minister, the most important institution in the country, he is assisted by the cabinet ministers. Cabinet ministers also happen to be the backbone of the Indian administrative system. इतने सारे लोग मिलके जब कंट्री चला रहे हैं तो कंट्री में प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Powers of Prime Minister में lot of discussions we had, but I would like you to do this activity and discuss it with me in the class. सेकेंड वाला तो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, ये वाला नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस एक्टिविटी. ठीक है, लिस्ट द नेम ऑफ 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्टर्स ईच एट द यूनियन लेवल एंड इन योर स्टेट. मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स का 5 नाम आपको बताना है, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम बताना है, एंड वही कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ देयर इन द स्टेट एंड हु इज़ देयर इन योर सिटी. ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है. एंड इसको पता करके प्लीज़ डिस्कस इट विथ मी, इसको आप मेरे साथ डिस्कस भी कीजिएगा. गॉट इट? एक तो ये दिखाना था.
दूसरा, I wanted to show you this cartoon. Can you see this cartoon? Yes, क्या है ये? This is the Prime Minister Indira Gandhi. Okay, and आप information देख लो. कार्टून, ये कार्टून क्या है? दिस कार्टून इज डिपिक्टिंग अ कैबिनेट मीटिंग चल रही है, एंड हु इज चेयरिंग इट? द प्राइम मिनिस्टर. शी वॉज इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर अर्ली 1970s में. वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर. जैसे आज नरेंद्र मोदी है ना, इसी तरह से वंस अपॉन ए टाइम इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो देयर. तो सिमिलर कार्टून्स आज भी हम बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, एंड जो उनको फॉलो कर रहे थे. क्या ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हैं अपने पास जिनके बारे में हम सोच सकते हैं? ठीक है, think about it and do discuss it with me in the next class. Okay children, thank you so much. Just see here it is mentioned. Thank you children, and all the best.